Welcome to my YouTube channel CBSC Biology. In this video, I am going to discuss about male reproductive system of flowering plant. It is for class 12 and its content is based on NCERT. So let's begin today's class. So once again I welcome all of you in my YouTube channel. इस वीडियो में आज हम लोग स्टेमन एंड्रोसियम कहें या स्टेमन कहें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बोले तो हम लोग उसके बारे में आज इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. लेट्स हैव अ रिकैप. एज यू नो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यू नो वेरी वेल flowers are the sites of sexual reproduction. Several hormonal and structural changes result in differentiation and development of the floral primordium. Inflorescences bear the floral buds and then the flowers, right? And you know very well, a typical flower has two parts in terms of reproduction. One is the endoecium and the other is gynoecium. In part 1 we already discussed gynoecium. अब इस पार्ट में हम लोग एंड्रोसियम देखेंगे. एंड्रोसियम you can see here एंड्रोसियम, the group of a stamen is called एंड्रोसियम. तो एंड्रोसियम है ये, आपने 11th में भी पढ़ा है. आज थोड़ा उससे आगे देखेंगे. So let's begin एंड्रोसियम. See the diagram. Locate the stamen. डायग्राम देखिए, stamen को locate कीजिए. This is stamen. You can see here stamen. This is also stamen. And it is the male reproductive part of the flower. Right? ये जो है फूल का male reproductive part होता है. And it consists of a whole of a stamen. Their number and length are variable in different species. Length wise देखें तो it is variable. Group wise देखें, नंबर वाइज देखें तो ये वेरिएबल ही होता है. आपने क्लास 11th में इसको पढ़ा है. सो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ अ स्टेमन. देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज. You see the parts of a stamen. Stamen is having two parts. One is the filament, this one the filament, and this terminal part is anther. See this one is anther and this thread like structure you see here is filament, right? See the filament. See, filament is long, slender, stalk like a structure. Its proximal end is attached to the thalamus or the petal of the flower. It depends on the type of flower, right? Anther, you can find anther at the terminal end. So anther, terminal, and typically it is bilobed. 1 and 2 lobe you can see very clearly in the diagram. Bilobe. Each lobe has 2 theca, right? हर प्रत्येक लोब में आपको 2 theca मिलेगा, 2 theca. So it is dithecous. Often a longitudinal group runs lengthwise separating the theca, right? Now see the TS of anther. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 में, आपको एग्जाम में पूछा जाता है. डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या आप सीधा सीधा रहेगा कि डिस्कस द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. तो आप ऐसे करके इसको बनाना पड़ेगा. सो एंथर का जब आप टीएस देखोगे, व्हेनेवर यू सी द टीएस ऑफ एंथर, द एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. यू कैन सी इन द डायग्राम द टेट्रागोनल वन. इसमें आपको मिलेगा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया विल गेट. सो द एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया located at the corner. See 1 2 3 4, these all are located at the corner, right? 2 in each lobe. The microsporangia develop to pollen sac. Later on microsporangia ही pollen sac बनाएगा. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with the pollen grain, right? तो आप यहाँ देखोगे माइक्रोस्पोरेंजिया ही pollen sac बनाएगा और इसी के अंदर pollen grains बनेंगे, right?
नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये डायग्राम जो सामने देख रहे हैं आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा, ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी का ही है, तो आप ध्यान से देखें। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, a typical microsporangium is nearly circular in outline, nearly circular microsporangium. It is surrounded by 4 wall layer. You can see 4 wall layer: epidermis, endothecium, middle layer और tapetum. तो ये 4 wall layer हो गए. The outer 3 layer means epidermis, endothecium, middle layer. These are 3 outer layer give protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. जब pollen बन जाएगा तो एंथर फटता है, तो इसके फटने में और pollen को रिलीज होने में ये वॉल हेल्प करेगा बिसाइड गिविंग प्रोटेक्शन, राइट। अब बहुत ध्यान से देखें, लोकेट करें, आपको मिलेगा एपिडर्मिस, एंडोथेसियम देखोगे, मिडिल लेयर है वहां, ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर इज टैपेटम, राइट। 3 जो लेयर होगा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन भी देगा, राइट, प्रोटेक्शन देगा। साथ ही साथ जब इसके अंदर पॉलन बन चुका होगा, देन एंथर हैव टू बर्स्ट, तो उसके डेसेंस में ये मदद करेगा ताकि पॉलन रिलीज हो सके, राइट। अब जो इनर मोस्ट लेयर देख रहे थे टैपेटम, द टैपेटम इनर मोस्ट लेयर nourishes the developing pollen grain. So this is the role of tapetum. Nutritive layer है ये growing pollen grains को, developing pollen grain को nutrition provide करता है, right? अब इसके cells थोड़े अलग हैं. Cells of the tapetum contain dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. उसको ध्यान में रखना है कि इसके cells बाकी से थोड़े अलग होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, न्यूक्लियस भी एक से ज्यादा ही होता है। इन यंग एंथर, अगर एंथर यंग है तो आप क्या देखोगे, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज अ स्पोरोजिनस टिश्यू एट सेंटर। सेंटर में यहां इस जगह पे, सेंटर में यहां, इसमें देखो, अगर डायग्राम में देख पाओ तो ये सेंटर में यंग एंथर के अंदर आपको मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू है और इसका सेल्स बिल्कुल होमोजेनस डिप्लॉइड है, स्पोरोजिनस सेल्स कह सकते हैं इसको। सो इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज अ स्पोरोजिनस टिश्यू एट सेंटर। इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस डिप्लॉइड सेल और स्पोरोजिनस सेल, यू कैन सी हियर, राइट। तो सेंटर में आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा जिसका सेल्स को हम लोग स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं और ये सब के सब डिप्लॉइड होंगे, राइट। अब आगे देखें, एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, ईच स्पोरोजिनस सेल, राइट, ईच स्पोरोजिनस सेल, इसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हो या पॉलन मदर सेल कह सकते हो। ईच स्पोरोजिनस सेल स्टार्ट बिहेविंग लाइक माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल। अब इसमें होगा मायोटिक डिवीजन, इट गोज अंडर मायोसिस। ये इसकी पोलैरिटी कैसी है, डिप्लॉइड। अब इसमें क्या होगा, मायोसिस। मायोसिस होने के बाद दिस विल फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में, टेट्राड मींस ग्रुप ऑफ 4, तो अभी ये मायोसिस होकर बनाएगा क्या, टेट्राड ऑफ पॉलन, माइक्रोस्पोर टेट्राड मींस माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 cells, right? The formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. So sometime it is being asked, बताओ भाई microsporogenesis किसको कहते हैं, तो आप बताइए, the formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. This is the pollen mother cell, it goes under meiosis forming microspore tetrad, और इसी टेट्राड से ये पॉलन ग्रेन सेपरेट होंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मायोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हो गया, पॉलन ग्रेन बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन, एज द एंथर मैच्योर,
जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर्ड होगा एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू ए पॉलन ग्रेन। अभी जो टेट्राड में था वो अलग अलग होकर के पॉलन ग्रेन में आ जाएगा, राइट। Each microsporangium contains thousands of pollen grains. They are released with the dehiscence of anther. When anther burst, pollen grains released out. You can see in the diagram a mature dehisced anther. यहाँ आपको दिख रहा है, तो ये जब एंथर फटेगा तो पॉलन ग्रेन सबके सब बाहर आने शुरू हो जाएंगे। और डेहिसेंस में हेल्प कौन करेगा? वो 3 लेयर, राइट। अब आप पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझें। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल, साइज वेरिएबल 25 to 50 mm इन डाया। अब इसमें देखोगे साइटोप्लाज्म इनसाइड सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म है, इसके चारों ओर यू विल फाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। A pollen grain has a 2-layered wall. You can see in the diagram the outer wall is exine and the inner wall is entine. So a pollen grain has 2-layered wall, exine and entine. Exine is outside, entine is just below it, right? अब इस exine को थोड़ा समझने की कोशिश करें। Exine is having actually it is hard in nature. Actually the hard outer layer is exine and this hardness is due to sporopollenin. So exine, the hard outer layer made up of a sporopollenin. A sporopollenin आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है what is a sporopollenin, तो आपको बताना है कि it is present in exine, highly resistant organic material. Highly resistant इसलिए कहते हैं because it can withstand high temperature and a strong acid and alkali. Enzyme cannot degrade the sporopollenin. So this is the property of a sporopollenin, right? अब जगह जगह पे आप गैप देखोगे, अपर्चर देखोगे, राइट। सो एक्साइन हैज अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। तो जर्म पोर जहां होगा, यू कैन सी जर्म पोर, यहां भी दिख रहा है। तो जहां जर्म पोर है वहां आपको स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। सो एक्साइन हैज apertures called germ pores where a sporopollenin is absent, right? Pollen grains are preserved as fossil due to the presence of a sporopollenin. Mind it. Pollen grains are preserved as fossil due to presence of this hard substance, sporopollenin. अब इस एक्साइन पे पैटर्न काफी अलग अलग टाइप के होंगे, तो फिर पॉलन ग्रेन भी अलग अलग दिखेगा। यू कैन सी इन द डायग्राम अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन आपको मिलेंगे। एक्साइन एग्जिबिट पैटर्न्स एंड डिजाइन, तो उसकी वजह से पॉलन ग्रेन दिखने में बिल्कुल अलग अलग होंगे, राइट। इंटाइन देखो अगर, तो इट इज इनर वॉल। इंटाइन इज इनर वॉल, इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, राइट। अभी आगे देखेंगे, अ मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। आप इसी में देख लें, 2 सेल आपको दिखेगा। वेजिटेटिव सेल, ये जो बड़ा वाला लार्ज सेल आपको यहां दिख रहा है, दिस इज वेजिटेटिव सेल, इट इज बिगर और ढेर सारा फूड मटेरियल इसमें होगा। इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व और हैविंग अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। उसके बाद एक छोटा सेल आपको मिलेगा, स्मॉल, and it floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Spindle shape आपको दिख रहा है and it is having dense cytoplasm with nucleus. So a matured pollen grain contains 2 cells. Vegetative cell, it is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. Generative cell, it is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is a spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus, right? अभी ये पॉइंट्स ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे। Over 60% एंजियोस्पर्म shed their pollen grain at 2-celled stage, means इसी स्टेज में 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म में pollen grain एंथर से बाहर आते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स आपको मिलेंगे वेयर जनरेटिव सेल डिवाइड, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होगा mitotically to give 2 male gametes. Thus pollen grains are shed at 3-celled stage. तो ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर केस में
बस इसी स्टेज में पॉलन एंथर से बाहर आएगा, लेकिन अन्य पौधों में भी आप देख सकते हैं कि इसमें डिवीजन पहले ही यहाँ इसका हो जाना है जेनेटिव सेल का 2 मेल गैमेट के अंदर, सो 3 सेल स्टेज में निकलेगा। तो ये केस पे डिपेंड करता है। नाउ सी pollen grain, male gametophyte. The shed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. अब pollen निकला है, इसके पहले ये मर जाए, इसकी viability lose हो जाए, स्टिग्मा तक पहुंचना है। अब viability period भी variable होता है। The viability period of pollen grains variable. It depends on temperature and humidity. Viability of pollen grain, इस एग्जाम्पल को याद रखना है, एग्जाम में आता है। Viability of pollen grain of some cereal, rice, wheat, etc. is 30 minutes. जबकि कुछ मेंबर्स लेगुमिनेसी के, रोजेसी के, सोलानेसी के ऐसे हैं जिनमें pollen की viability मंथ तक होती है। So viability of pollen grains of some cereals is 30 minutes like rice, wheat. Some members of leguminaceae, rosaceae and solanaceae have viability for months. Now see economic importance of pollen grains, right? So ये काम की चीज है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर ही रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसका है। These are rich in protein. Pollen grains are rich in protein. Pollen tablets are used as food supplements. Pollen tablets and syrups increase performance of athletes and race horses. तो एथलीट्स वगैरह या जो रेस के घोड़े हैं उनको ये दिया जाता है ताकि उनका पावर जो है वो इम्प्रूव हो। एंड दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, रख सकते हैं इसको। दे आर यूज्ड एज पॉलन बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो वहां भी फायदा है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट जैसे पार्थेनियम है, कैरोट है, तो थोड़ा नुकसान भी पहुंचा रहा। दे आर एलर्जिक फॉर सम पीपल, इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एस्थमा, bronchitis, etc.